So today we will start the Solana account model and rent. We have completed unit 1 of Solana. From today onwards, we are going to start with unit 2. The जो कुछ हमने यूनिट 1 में सीखा है, यूनिट 1 में हमने सिर्फ एक अपर लेवल पे सीखा है. अब यूनिट 2 में हम लोग इन डेप्थ सीखेंगे. सोलाना में जो अकाउंट टाइप्स है वो अलग क्यों है, हाउ सोलाना's accounts are different when we compare that with Ethereum's. We also have a concept of rent. अब अगर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछूं, रेंट का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, they stay in PGs, so they pay a certain amount of rent for a month. But when you fail to pay that rent, लैंडलॉर्ड आएगा, बोलेगा भाई पेमेंट नहीं किया है, 15 दिन का टाइमलाइन है, इफ यू पेड यू विल स्टे, एल्स निकलो बाहर. सिमिलरली सोलाना ब्लॉकचेन पे अगर तुमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, अब सोलाना ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद अकाउंट और डेटा दोनों अलग रहते हैं. In order to persist that data onto the Solana blockchain, you pay the rent. ठीक है? जो तुम्हारा डेटा है, मान लो सोलाना ब्लॉकचेन का स्टोरेज, that is your PG. The data, that is the storage. In order to persist that data as long as possible on the Solana blockchain, you must pay a rent. And that rent is paid in the form of lampposts. Lampposts क्या है? सोलाना का सबसे छोटा यूनिट. जैसे INR का सबसे छोटा यूनिट है पैसे, 100 पैसे equal to 1 rupees. Similarly, 1 sol equal to 10 raised to 9 lampposts. ये याद रखो. 10 raised to 9 जब आप कहते हैं 1 followed by 9 zeros. ठीक है? 1 sol equal to 10 raised to 9 lampposts. So to summarize, in order to persist your data on the Solana blockchain for as long as possible, you must pay a rent. How Solana stores every piece of state from your wallet balance to a deployed program in one uniform structure. ठीक है? But I will also make sure that each and every concept gets into your head. That is my responsibility. मैं पढ़ाऊंगा, भूल के लिखो. ठीक है? So next is, whenever we start a new lecture, we define the agenda. Then after the completion of this lecture, what will I know as a student? This pattern you must follow in all the lectures. In all the lectures, whatever before coming to the lecture, you are like a blank slate. But after the lecture, you must have something gained, right? So what we are going to cover today is describe the account as Solana's universal state content. In Solana blockchain, everything is stored in the form of account. You have wallet account, you have system account, you have program account. Program account is again divided into two parts. One account is the one which executes code, that is a smart contract, and one account is a program data account that stores only the data. And after that we will classify any account you encounter on chain. In case of Ethereum, all we know are two kinds of account. First is externally owned account, EOA, and second is smart contract account, right? But looking at the account address, we cannot say whether that is a smart contract account or externally owned wallet account. But if you copy that address, go to Etherscan, search on Etherscan that address. If that address has code, that is smart contract. If that address doesn't have code, that is one wallet account. Right. Then apply the ownership invariance. If there is an account, there must be owner. Right? Similar to if there is a PG, there must be a landlords. Similarly, if there is an account, there must be an owner. Compute the rent exempt minimum for any account size. अब जब पिछले स्लाइड में मैंने बोला ना कि अगर तुम्हारा डेटा सोलाना ब्लॉकचेन पे परसिस्ट करना है, you have to pay rent. तो वो रेंट डिसाइड कैसे हो? राइट? व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? अब पीजी में मैं अकेला रह रहा हूँ. जब पीजी में मैं अकेला रहूंगा तो रेंट रहेगा 3000. अगर मैंने पीजी में गौरव को भी ले लिया तो लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा? पहले एक तब 2 हुए, अब रेंट डबल. कोई मराठी मूवी है ना फेमस, धनंजय माने इतर आता कैच, बरोबर? उसमें कैसे बनवा बनवी, उसमें कि सब भरते रहते एक ही रूम में, राइट? तो जो हमारा सोलाना ब्लॉकचेन है उसमें तुम्हारा जो अकाउंट का डेटा का साइज है, दैट डिसाइड्स द रेंट अमाउंट, कि तुमको कितना रेंट देना पड़ेगा. तो वो कैसे डिसाइड होगा वो भी देखेंगे आज. क्लोज एन अकाउंट एंड रिक्लेम इट्स लैंडपोर्ट्स. When we say close an account, I am leaving the PG, the deposit which I have given in the beginning, I want it back. So अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होगा तुम्हारे दिमाग में. इथेरियम में तो क्लोज अकाउंट का फीचर था ही, यहाँ पे क्लोज अकाउंट का फीचर है, तो मैं इसको काउंटर कैसे करूँ? इथेरियम में रेंट वाला कंसेप्ट भी नहीं है ना. तुमने इथेरियम में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया, डेटा तुमने कुछ राइट कर दिया, दैट विल बी परसिस्टेड अक्रॉस n number of nodes as long as Ethereum blockchain runs. Solana का केस वही सुई में राइट्स नहीं दी.
रहना है तो भाड़ा लगे, ठीक है. एंड हाउ दैट रेंट इज डिसाइडेड, दैट रेंट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द अमाउंट, द डेटा size in kilobytes which you are storing on the Solana GPU. So after this lecture, you must be in a position to describe, or whenever you heard the term account on Solana, you must know what kind of that account is, and depending on the account type, the feature changes. Secondly, whatever account address you come across chain, right? When looking at the address, you should be in a position to classify that account, whether it's a wallet account, whether it's a program account, whether it's a data account, whether it's an executable account, or at last whether it's a system account. By looking at the address, you must be in a position to say कि ये account किस type का है. Thirdly, apply the ownership invariants, predict which program is allowed to mutate a given account. Mutation का मतलब क्या होता है? Change कर. Word भारी भर के मैं मीनिंग सिंपल. Mutation का मतलब होता है डेटा अपडेट करना या चेंज करना, राइट? अब मेरा अकाउंट है, एज अ ओनर only I should be able to modify that. Nobody else should be in a position to do that. So third point is applying the ownership invariants. If you are the owner of the account, how can you change the data of that account, and how can you transfer solve from one account to another? Fourthly, use the network constants to size the deposit before you create an account on their net. Last, whenever you close an account, you give the space, and whatever the deposit that you have paid upfront, that is refunded to you. एक चीज दिमाग में डाल लो, everything on Solana is everything. Solana blockchain में तुमने कुछ भी देखा, that is an account. कुछ भी. First is the file system and all. Solana's on-chain state behaves like a key value store. This is applicable to each and every blockchain. Key value store का एकदम सिंपल एग्जांपल ले लो. तुम तुम्हारे घर में गए, तुम्हारे बेडरूम में तुम गए, तुम्हारे बेडरूम में कबाड़, राइट? उस कबोर्ड में अलग अलग सेक्शंस. एक सेक्शन में तुम्हारे टी शर्ट्स हैं, दूसरे सेक्शन में तुम्हारे जीन्स हैं, थर्ड सेक्शन में तुम्हारा बैग है, ठीक है, फोर्थ सेक्शन में तुम्हारे लास्ट ईयर के बुक्स हैं, फिफ्थ सेक्शन में तुम्हारी बहन के कपड़े आ गए, बिकॉज यू बोथ आर शेयरिंग द सेम कबोर्ड, राइट? अब each section corresponds to some kind of, we could say, things that you are keeping there, correct? Similarly, blockchain में everything is stored as a key value पे. Solana का जो स्टोरेज है, अगर मैंने वहाँ पे इस माउस को स्टोर की तो इसके अगेंस्ट एक की जनरेट हो, एंड दिस की विल करस्पॉन्ड टू दिस वैल्यू. सो दिस इज की, दिस इज वैल्यू. सो एवरीथिंग ऑन Solana blockchain is stored as a key value pair. Same thing applies to Ethereum blockchain as well. Again and again, why I am giving reference of Ethereum blockchain? Because Ethereum blockchain के बारे में तुमको सीखा है. जब मैं तुमको काउंटर एग्जाम्पल दूंगा एंड यू विल बी एबल टू कोरिलेट दैट, ठीक है? Identified by 32 byte address, it holds an arbitrary blob of bytes plus a small amount of metadata, and it is stored in the validator's account database. We have seen who are the validators. जब कभी भी ट्रांजैक्शन आएगा, those transactions are being put into a block by validators. So जो अकाउंट है तुम्हारा Solana blockchain, उस अकाउंट का जो स्टेट है वो कहाँ पे स्टोर होगा? जो वैलिडेटर नोड्स, राइट? उन वैलिडेटर नोड्स पे डेटाबेस रहेगा, उस डेटाबेस पे स्टोर. Blockchain is decentralized, distributed, right? So each and every validator will have a copy of your account state, because the transaction must declare every account it reads or writes. The runtime knows the exact cost it set in advance. इसका मतलब क्या है? Let us say I am performing one transaction, Purva is performing another transaction, Om is doing transaction number 3, Sarthak is doing transaction number 4. I am interacting with, say, USBC, Sarthak is interacting with USDT, Om is interacting with DAI. These three transactions are independent. They are not correlated to each other. In that case, Solana has a C-level runtime which identifies how many transactions are independent and will execute them parallel. In case of Ethereum वैसे नहीं होगा. तो अगर Ethereum blockchain में हम तीनों ने ट्रांजैक्शन सेंड किया, तो सेंड करने के बाद क्या होगा? जो नोड है, ट्रांजैक्शन पहले मेमोरी पूल में जाएगा, and each of these transactions will be picked up one after the other. That doesn't make sense because they are independent transactions. So Solana has the C-level runtime. इसका जॉब क्या है? अब तुम ये पूछोगे, पर सर उस C-level runtime को कैसे पता चल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट है? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ये ब्लॉकचेन का स्टेट है, ये FT है, राइट? जब ट्रांजैक्शन आएगा तो स्टेट अपडेट होगा. ये पहले ट्रांजैक्शन के बाद स्टेट अपडेट होगा, सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद स्टेट अपडेट होगा, थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद स्टेट अपडेट होगा, करेक्ट?
अभी ये जो स्टेट अपडेट हो रहा है, दिस स्टेट अपडेट्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन राइट होने के बाद क्या होने वाला है ये ब्लॉकचेन को पता है, या तो सोलाना वर्चुअल मशीन है उसको पता है, एसवीएम। जैसे इथेरियम के केस में ईवीएम है, जैसे सोलाना के केस में एसवीएम। अब जब उसको पता है कि जब जो स्टेट अपडेट होने वाला है, these three state updates are independent of each other. So why Sarthak's transactions should wait for Balaji's transaction to go through? Instead, perform both the transactions simultaneously or parallelly. और ये कौन करता है? ये करता है सी लेवल रनिंग। कितने भी तुम डाउट सुनोगे, अंडरस्टैंडिंग का सबसे इजी ट्रिक बताओ। एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर, एक पीस ऑफ कोड है। जैसे तुमने एक प्रोग्राम लिखा टू फाइंड प्राइम नंबर, एक इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है वो, एंड तुम लॉजिक में चेक कर रहे हो इज दैट नंबर प्राइम नंबर, राइट? ये प्रोग्राम हुआ। वैसे ही सी लेवल की प्रोग्राम, वो क्या करेगा? जितने भी इनकमिंग ट्रांजैक्शंस आए चेक करेगा, आर वी इंडिपेंडेंट? यस, execute them parallel. Just solve values. An account owned by a system program holding lakh ports and 0 bytes of data. अब lakh ports के बारे में बताएं. It is the smallest unit of Sol. Then we have what Solana does not have. No per contract storage mappings built into the code. जैसे Ethereum में क्या है? Smart contract का code and data एक ही जगह. Solana में दो केस नहीं. तो already defined है. तुम प्रोग्राम कोड लिख सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो। अब अकाउंट प्रोग्राम में अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि जो वॉलेट का लॉजिक है मैं वो लिखूंगा, तो वो लिख कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब सोलाना वो कुछ चीजें फास्ट बना ली, तो वो जो बेयर मिनिमम पीसेस है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। यू कैन राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे कि तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोग्राम बने, अगर तुमने टोकन कॉन्ट्रैक्ट लिखा तो दैट विल बी योर टोकन प्रोग्राम। जैसे इथेरियम में तुमने क्या किया? ओपन जपीन से ERC20 को एक्सपोर्ट किया, contact my token is ERC20. You created my token contract, and that my token is ERC20 compatible, right? तो यहाँ पे जब तुम सोलाना में खुद का टोकन बनाओगे तो तुमको SPL टोकन के बारे में रीड करना पड़ेगा पहले। फर्स्ट यू क्रिएट SPL टोकन। SPL टोकन बनाने के बाद उस प्रोग्राम से तुम जितने यूजर के लिए टोकन मिंट करोगे दैट विल बी गवर्न्ड बाय द टोकन प्रोग्राम। और जिसके लिए तुम मिंट कर रहे हो उसका पब्लिकली डेटा फील्ड में रहेगा, जिससे उस अकाउंट को पता चलेगा कि किसका बैलेंस कितना है। These are new to the Kavis one is that they'll need to copy years. They don't think these are mixed right. ये these are not the main reasons. जैसे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि we have C level runtime which executes transactions parallel. That is then Solana uses proof of history plus Tower BFT. Proof of history plus Tower BFT ensures the finality can be achieved in under 2 bytes. But Ethereum क्या करता है? higher order के 12 bits पे स्टार्ट कर देते हैं, और जो lower order के 20 bytes हैं, sorry bits बोला मैं, bytes, जो lower order 20 bytes हैं that is written at the account address. But in case of Solana they say you don't want to dispatch anything, you use the entire 22 byte address. First the key pair address, the address is an, in case of Ethereum के केस में curve का नाम क्या है? तो बड़ा कर सकते हो उसके अंदर SE7PK2561, right? So that is the curve which Ethereum uses. But Solana के केस में it uses ED25519. मतलब अब तुम बोलोगे ब्लॉकचेन में कर्व कहाँ से आया? बिल्कुल सिंपल चीज है, जब तुम वॉलेट जनरेट करोगे, like when we say that from the private key we can derive the public key. We cannot say that blankly. Without proof, we cannot claim that from the private key you will get the public key. How can that be proved? That can be proved by using ED25519. So the last 32 bytes, it is displayed as a base 58 string of the characters. This is total of 8 एक form है to represent characters. This is base 58 में एक form है. We can explain the other. Somebody owns the matching private key and can sign for it. Create an account. You have the private key. The one who owns the private key can only sign the transaction for that particular account. It is used for wallets and for accounts and user creates. So हमने account के बारे में देखा। सबसे पहले where do account addresses come from? First is key pair address. Key pair, private key, public key. Then second is PDAs, program derived addresses. You have a program. This is a program. Now in this program, if I pass in a seed value, this seed, it can be anything. A random number. It can be my name. It can be the class you are studying in. When we combine this and generate our address, right, that is called as PDAs, program derived addresses. Since it was derived from an existing program, hence it is called
program derived addresses. Now these accounts or these addresses do not have a private key. These addresses do not have a private key. Why? Because they have been derived from an existing program. In the mathematical reason behind that is these account addresses do not have, it cannot be plotted onto the ED255192. की पेयर के केस में क्या होगा, प्राइवेट की तुम्हारे कर्व पे एक पॉइंट है, उससे तुमने पब्लिक की डिराइव की, ओके, यहाँ से जो तुमको एड्रेस मिलेगा पीडीएस से, इसका तुमको करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की तुम कंप्यूट ही नहीं कर पाओगे जो कर्व पे है. इज अ मैथमेटिकल यूजिंग गेम. इट इज डिटरमिनिस्टिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रोग्राम आईडी प्लस सीड्स. The seed can be anything passing your name while random data deliberately pushed off the ED25519 curve. मतलब ये जो कर्व है, कर्व के ऊपर ये पॉइंट आएंगे नहीं, अब सिंस से कर्व पे ये पॉइंट्स आएंगे नहीं, जितने प्राइवेट केसेस only the deriving program can authorize them to say. अब जैसे प्रोग्राम 1 है, राइट, प्रोग्राम 1 से मैंने अकाउंट 1 बनाया. अब ये जो प्रोग्राम है, सिर्फ यही प्रोग्राम कैन ऑथराइज द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम दिस अकाउंट, क्योंकि यही से ये जनरेट हुआ है. यूज्ड व्हेनेवर प्रोग्राम नीड्स स्टेट इट अलोन कंट्रीज. अब एक प्रोग्राम है, हम लोगों ने सोलाना में फर्स्ट यूनिट में सीबीआई के बारे में पढ़ा था, क्रॉस प्रोग्राम इन्वोकेशन. क्रॉस प्रोग्राम इन्वोकेशन क्या होता है? वन कोड इज कॉलिंग अनदर कोड, का वन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉलिंग अनदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. अभी इस केस में ये प्रोग्राम डिराइव्ड एड्रेसेस की जरूरत कब पड़ेगी? व्हेनेवर यू वांट टू राइट और अपडेट स्टेट, राइट, तुमको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा. अब अगर एक प्रोग्राम को कोई चीज अपडेट करना है, प्रोग्राम के पास तो प्राइवेट की है, कैसे करें? सो प्रोग्राम वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा इसके पीडीए के थ्रू. अब पीडीए के थ्रू वो क्यों होगा? क्योंकि ये जो अकाउंट है, इट इज ओन्ड बाय दिस प्रोग्राम. तो सोला का दे रहा है वी इज कवर्ड, सो इट कैन परफॉर्म ट्रांजैक्शंस. कीप योर एड्रेस एंड ऑर्डिनरी वॉलेट. सोलाना वॉलेट के बीच में दिखने में ऐसे टेक्स्ट. अब देखो ये जो है नेटिव प्रोग्राम एड्रेसेस नो प्राइवेट की नो होगा. जब हम लोग डेवलपमेंट का पहला लैब कर रहे थे, तो तुमने अगर नोटिस किया होगा तो जो अकाउंट 0, अकाउंट 1, अकाउंट 2 था टर्मिनल पे, राइट, तो तुमको 11.11 भी दिखा होगा. और तुमको ये क्वेश्चन आए नहीं आए, क्या ये 1111 है, दैट इज अ सिस्टम प्रोग्राम. और अगर कोई टोकन प्रोग्राम है तो देखो वो स्टार्ट होता है विद कीवर्ड टोकन, उसके बाद इसका एड्रेस. जो पहले स्लाइड में देखा था अकाउंट टाइप देखने के बाद ये भी इक्वल टू क्लासिफाइड अकाउंट्स. इधर 1111 आया सिस्टम अकाउंट, यानी टोकन के बाद एड्रेस आया तो टोकन प्रोग्राम अकाउंट. ठीक है, तो सिर्फ 2015 एड्रेस आया कीपर अकाउंट, कंपेयर दैट विद योर MetaMask account. Previous are formally covered in Unit 3. For now, remember only this address without a private key still a perfectly valid account address. ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये क्या है, पीडीए ऐसा अकाउंट एड्रेस है जिसका प्राइवेट की नहीं, और वो वैलिड है, हम इसके थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते. क्या हुआ? उसका एक्सेस है उसके जो प्रोग्राम अकाउंट से डिराइव हुआ है, ओनली दैट अकाउंट कैन एक्सेस इट और इन लूप ट्रांजैक्शंस फ्रॉम दैट पीडीए अकाउंट. बस ईच अकाउंट हैज 5 fields. कौन से डेटा, ओनर, एग्जीक्यूटेबल, लास्ट वाला क्या है? राइट रिपोर्ट. 4 types of account you will meet. First is wallet account, wallet or system account. Owned by the system program, data length is 0. It holds lamports and nothing else. नाम से ही पता चलता है ना, वॉलेट अकाउंट है तो उसमें डेटा रहेगा ही. This is what the Phantom or CLI Keeper controls. सोलाना डेवलप का जब हमने लैब किया, राइट, लास्ट थर्सडे, हमने उसमें क्या किया? सोलाना ट्रांसफर रिसीवर का एड्रेस अमाउंट, करेक्ट, एंटर, द अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड. यस, राइट, सो दैट वाज आवर वॉलेट अकाउंट. देन वी हैव प्रोग्राम अकाउंट. अब प्रोग्राम अकाउंट के केस में क्या है? एग्जीक्यूटेबल इज सेट टू जो अकाउंट स्ट्रक्चर है, राइट, इट हैज 5 fields. If it is a program account, in that case, executable is set to be. Its data is the compiled SBF bytecode. SBF is Solana bytecode format. जैसे कि Ethereum का bytecode है, it can enter Ethereum का transaction कहाँ पे process होता है? That happens inside EVM, Ethereum virtual machine, and EVM understands only EVM bytecode. Similarly, SBF understands Solana bytecode format. It is owned by a BPF loader. मैंने पहले बोला था राइट, प्रोग्राम अकाउंट. It is owned by a BPF loader. It is immutable unless deployed with an upgrade authority. So in Solana also we have, you could say, upgradable smart contracts and non-upgradable smart contracts. So if the contracts are non-upgradable,
Once deployed, you cannot change it. Whereas if the contracts are upgradable, you can change the contract code even after deployment. Now we have program's own data account. First wallet account, second program account, third program owned data account. In Solana, we know the concept that program and data are stored differently. Whenever you want to store data for program X, so that program X will own the data account X, in which all the data for program X will be stored. Owned by some deployed program, which alone may write to it. When we say write to it, obviously state update होगा transaction के बाद. Token accounts, mints and PDAs all fall here. This is where DApp state lives. DApp state, you have created a decentralized application. Whenever you want to query data for your decentralized application, all that data on the Solana blockchain comes from the program owned data account. It will not come from the program account because program account only has the logic. Yes, कोड में ये प्रोग्राम अकाउंट सिर्फ लॉजिक है. अब इथेरियम के केस में कैसे कंपेयर करोगे? इथेरियम के केस में स्टेट वेरिएबल है, राइट? ये जो स्टेट वेरिएबल है ना, ये सोलाना ने एक डेटा अकाउंट बनाया और डेटा अकाउंट में डाल दिया सारे स्टेट वेरिएबल्स. जितने भी स्टेट वेरिएबल्स है, सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स एक डेटा अकाउंट में आ गए. तो तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या सिर्फ लॉजिक है? जो तुम्हारा प्रोग्राम अकाउंट है उसमें सिर्फ लॉजिक है. तो वो लॉजिक एग्जीक्यूट होने के बाद जो डेटा अपडेट होगा, वो डेटा कहाँ पे अपडेट होगा? डेटा अकाउंट में अपडेट होगा. और वो डेटा अकाउंट को ओन कौन करना है? प्रोग्राम. सोलाना का एकदम सिंपल कि जैसे डेटा अकाउंट का साइज बढ़ेगा, तुम्हारा रेंट बढ़ता जाए. अब डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. जैसे तुम्हारा बाइट्स का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो रेंट तुम पे करोगे टू कीप योर डेटा ऑलवेज अवेलेबल ऑन चेन, वो बढ़ता जाएगा. So इसमें रेंट ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली है ना, सोलाना बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे तो. नहीं, लिमिट है. अच्छा, मैंने तुम्हारा डेटा अकाउंट का साइज ना, आई थिंक फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने लिखा था इट इज 10 MB. जो तुम्हारा डेटा अकाउंट है, इट कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड 10 MB बिकॉज अगर वो कैप नहीं लगा स्लो स्टोरेज का प्रॉब्लम होगा. कोई भी आगे कुछ भी स्टोर करेगा. आई कैन राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ बुक पे द रेंट. That should not be the case. Hence, maximum data account size is 10 MB. 10 MB. Right? I'll be verified once. And last we have is native workers. अभी यहाँ पे ये जो sysvag है, right? ये पहला लेक्चर लिया था SEO ऑडिटिंग का wormhole का. Wormhole hack. उसके इसका वजह से errors. इसकी वजह से hack हुआ था. Sysvag. कि वो याद है wormhole bridge hack. Privacy का तो है Wormhole hack. वो एक मतलब कोड जो नीचे लाइक वही था. तो re-entrancy. सर विद 80 बंदे नहीं 4 प्राइवेट स्टोर का. That is running bridge hack. Wormhole के केस में क्या था? ये जो सिस्टम ये नहीं बताई. This was reading an account which the attacker supplied. Suppose I want to execute instruction X, and that instruction X says there is a specific account. That account must have approved this transaction. Only then it will go through. Okay? Now that specific account was taken as a function argument. Ideally क्या होना चाहिए? वो जो specific account है वो system account है, right? That should not be accepted as a function argument. अभी अगर function argument मैंने पास किया, I can pass my own account. और उस account से मैं एक fake signature भी नहीं दूंगा approve, right? तो सोलाना क्या करेगा? Using sysvag, सोलाना ने sysvag.load instruction add को कॉल किया. लोड इंस्ट्रक्शन add. और जब उसने वो इंस्ट्रक्शन को लोड किया तो वहां पे जो एड्रेस था दैट वाज यूजर सप्लाइड एड्रेस. अब यूजर सप्लाइड एड्रेस से तो मैं अटैकर हूँ, तो मैंने यश का एड्रेस भेजा. यश का एड्रेस मैं ओन कर रहा था. मैंने यश का एड्रेस भेजा. भेजने के बाद जैसे वो इंस्ट्रक्शन लोड हुआ मेमोरी में, लोड होने के बाद सोलाना प्रोग्राम ने ये चेक किया इज इट अप्रूव्ड. तो जो एड्रेस मैं भेज रहा हूँ उस एड्रेस से मैं अप्रूव फ्लैग भी सेट कर सकता हूँ ना. तो मैंने अप्रूव फ्लैग सेट किया. सोलाना प्रोग्राम बोला सब सही है, हो गया है. वो क्यों बताया? इस sysvag हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखा. रन टाइम मेंटेन अकाउंट्स एक्सपोजिंग क्लस्टर स्टेट तो अब रैंक epoch scaling plus native programs such as system and user progress. एक चीज सबको याद रखना है when it comes to account, right? You will see 4 kinds of account: wallet or system account, program or data account, system variable and native accounts. जो कोई भी अकाउंट देखोगे उसका ओनर फील्ड चेक करना पड़ेगा हमेशा.
जब उसका तुम ओनर फील्ड लिखोगे उस ओनर फील्ड से तुमको क्या पता चलेगा, इट विल टेल यू which programs rules govern the account and therefore which instruction set can legally modify it. अगर कोई अकाउंट है उसका ओनर है सिस्टम लेवल सिस्टर अकाउंट है, तो ये अकाउंट क्या क्या कर सकता है, वो रूल्स अप्लाई होंगे उस अकाउंट में, ठीक है। तो ये 4 टाइप के अकाउंट है एंड इसमें जो ओनर अकाउंट है, ओनर अकाउंट विल डिटरमाइन कि उस अकाउंट पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हम रन कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा प्रोग्राम ओवर डेटा अकाउंट, राइट। अब इसको इन डिटेल यूज सोलाना सेपरेट्स कोर फ्रॉम स्टेट्स। अगर इथेरियम के केस में तुमको ये समझ में जाना है, राइट, इथेरियम के साथ इसको कंपेयर करोगे तो इथेरियम में जो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट हैज द इम्प्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो जब भी तुम प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट की कॉल करोगे तो वो इंटरनली डेलीगेट कॉल करेगा इम्प्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉजिक कॉन्ट्रैक्ट। Similarly, it shows where state lives or where the state variables are stored in case of Solana. In separate accounts passed to the program. Solana में we have data account जिसमें state store होता है. Ethereum में inside the contracts own storage. Second is who owns that state. In case of Ethereum, the contract that declared the values. In case of Solana, the program name in the account's owner field. Who owns that state? Ethereum में जिस कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दैट कॉन्ट्रैक्ट ओन्स दैट स्टेट। सोलाना में जो प्रोग्राम में ओनर फील्ड है, राइट, जो तुम्हारा प्रोग्राम अकाउंट है इसमें जो ओनर फील्ड है, दैट ओनर फील्ड ओन्स द स्टेट इन केस ऑफ सोलाना। और डिक्लेयरिंग एक्सेस, इथेरियम में क्या है, इट इज इंक्लूसिव द कॉन्ट्रैक्ट लीव्स व्हाटएवर इट लाइक्स। सेम कॉन्ट्रैक्ट से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई स्टेट वेरिएबल। सोलाना में एक्सप्लिसिट एवरी अकाउंट मस्ट बी लिस्टेड इन द इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, जब हम लोग इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे सोलाना में तब क्लियर हो, ठीक है। डिप्लॉइंग अ सेकंड इंस्टेंस, इथेरियम के केस में डिप्लॉय द होल कॉन्ट्रैक्ट अगेन, यूज द प्रोग्राम, क्रिएट अ न्यू डेटा। लॉजिक तो सही है ना, जो स्टोर किया उसको चेंज करना, अगर लॉजिक में गड़बड़ है तो सेम एज इथेरियम, डिप्लॉय द होल कॉन्ट्रैक्ट अगेन। लास्ट एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल, इट इज नॉट, इट इज पैरेलल व्हेन अकाउंट सेट्स डू नॉट ओवरलैप। जो एग्जांपल दिया था, साउथ तक एक ट्रांजैक्शन कर रहा है, प्रो में एक ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये एक ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर तीनों इंडिपेंडेंट है तो तीनों ट्रांजैक्शन एट अ टाइम एग्जीक्यूट होंगी। If why it matters for security? Because accounts arrive from the caller, the Solana program must verify that each one in the account it expects. Then that single obligation is the root of most Solana vulnerabilities. The mirror image of Solidarity's access control box. कौन सा अकाउंट क्या क्या एक्सेस कर सकता है, राइट। अगर वही अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया तो तुम्हारा पूरा कोड कॉम्प्रोमाइज हो गया। जब घर जाओगे ताकि सोलाना डॉक्यूमेंटेशन तुमको रीड करना, जब डॉक्यूमेंटेशन तुम रीड करोगे और आज लेक्चर में जो जब तुम ये दो चीज़ों को कनेक्ट करोगे तब तुमको क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तुमको क्वेश्चन पूछो, इधर मुझे पूछो या गूगल को पूछो, लेकिन पूछो। और क्वेश्चन कब आएगा, जब तुम पढ़ाई करोगे तब आएगा, ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा। एल्स लेक्चर सब समझ लेक्चर के बाद घर जाके मैंने अकाउंट में 5 फील्ड तो वो लैम्पोर्ट का डेटा टाइप क्या था, एग्जीक्यूटिव क्या था, ये सारे क्वेश्चन वैसे कर रहे थे कि मार गए स्टार्ट लेक्चर में सब समझ। There's a program account, there's a owner's field which controls the data. Your question is how that owner field is set, we will come to know. So 3 ownership invariants, the runtime enforces. First, only the owner program may modify an account's data. You have an account, Sarthak has an account, Sarthak is the owner of that account, only Sarthak can modify the data. Second क्या है, only the owner program will debit LAN ports. इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास जो वॉलेट है उसमें सॉल्ट टोकन से मैं ही उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। लैंड पोर्ट्स क्या है, लैंड पोर्ट्स नथिंग बट सॉल्ट टोकन्स। अगर पूर्व क्या कम से मैंने सॉल्ट टोकन भेज दिया तो वो कैसे हो गई, ये तो स्कैम हो गया। तो सेकंड में ये एक हुआ। और थर्ड क्या है, ओनरशिप में भी रीअसाइन होती व्हेन द डेटा इज इक्वल। जो डेटा है मतलब पहले मान लो डेटा का लेंथ था 256 बाइट्स और उस केस में ओनर था, अब तुम्हें उस प्रोग्राम अकाउंट का ओनर चेंज करना, तुम जो डेटा बाइट्स का तब उसका ओनर चेंज नहीं कर सकते, तब वो डेटा का लेंथ 0 हो गया। मतलब तुमने पूरा डेटा, क्योंकि यहाँ पे सोलाना में क्या कंसेप्ट है, रेंट वाला कंसेप्ट है, राइट। जब तक तुम्हारा डेटा तुमको परसिस्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा साइज यू हैव टू पे रेंट। और जो रेंट एग्जेप्ट वाला यूज केस है, राइट, क्या रिफंड वाला यूज केस,
कि जब तक तुम्हारा डेटा रहेगा तब तक तुमको रेंट देना पड़ेगा। पर जैसे तुमने डेटा डिलीट किया तो जो तुमने रेंट दिया था तुमको मिल जाएगा। नहीं रेंट मिलेगा, सॉरी डिपॉजिट नहीं। मतलब यहाँ पे अगर तुमको डेटा परसिस्ट करना है सोलाना ब्लॉकचेन पे, देन यू इट इज काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अपन बोलते हैं कि मेरा डेटा है ना उसके लिए तब तक आई पे सॉल्ट टोकन्स। बट इवन दो उसका टर्म रेंट है, मेरे को समझ में आता है कंफ्यूजन कहाँ पे जा रहा कि अगर सर मैंने एक महीना मैंने डेटा इतना यूज किया, देन उसके बाद मेरा डेटा का सिस्टम हो, हाँ तो उस केस में क्या हो? वो एक है और दूसरे और तो है तो सडे सोलाना में अगर तुमको तुम्हारा डेटा सोलाना ब्लॉकचेन पे रखना है, then you have to pay certain lamps. Now when we say you have to pay certain lamp, it is as good as जो तुम्हारा सॉल्ट टोकन से that gets locked, ये यूज नहीं हो रहा है, वो लॉक हो गया। जब तुम डेटा वहां से डिलीट करोगे, ये लॉक टोकन था, वो अनलॉक हो गया वापस तुम्हारे पास। डेटा इम्यूटेबल होता है, बट जो स्टेट है सोलाना के केस में क्या है, तुम अभी इथेरियम का कंसेप्ट यहाँ पे मत लाओ, फिर शॉर्ट सर्किट चालू हो पूरा। इथेरियम में क्या है, इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेटा दोनों एक ही है, यहाँ पे कोड एंड डेटा दोनों अलग है। अब जो डेटा अलग है, अब डेटा डिलीट कैसे होता है? अगर एक एरे है, उस एरे में मैंने 1000 एलिमेंट्स 1000 नंबर स्टोर किए, अब उसमें से मुझे जब मैंने 1000 नंबर स्टोर किया तो 1 to 1000 तो उसका साइज हो गया 256 बाइट्स, तो उसके लिए आई एम पेइंग 1 सेंट। तो गोइंग अहेड अब उस एरे से मुझे 1 to 500 डिलीट करना, तो मैंने 1 to 500 डिलीट किया तो उसका साइज हो गया 256 बाइट से 128 बाइट्स। जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले डेटा तो डिलीट हुआ, पहले 1 to 1000 था, 500, तो जो स्पेस तुमने बाकियों के लिए अवेलेबल करा है, उसके लिए जो तुम्हारा सॉल्व तुमने पहले दिया था, पहले मान लो 1 सॉल्व दिया था, तो 0.5 सॉल्व तुमको मिल जाए। हाँ ठीक है। आप ओनरशिप इनवेरिएंस मतलब हर मंथ है अच्छा, जब तक डेटा है हर मंथ देना पड़ेगा तुम्हें, हर मंथ में एक ही बार में तुम्हारा जो डेटा है उसके हिसाब से सॉल्व लॉक होगा, वो लॉक होगा। हाँ वो फिर से जब अपन उसका डेटा नहीं तो फिर से नहीं। अभी अपन ने डेटा चेंज किया आपने बोला, तो अब इसमें क्या है, उस सिनेरियो में क्या होगा? डेटा 256 बाइट से जब कम हुआ तो रिफंड हुआ। हाँ, जितना डेटा कम हुआ उतना ही रिफंड। हाँ, फिर उसके बाद डेटा जितना बढ़ेगा उस हिसाब से तुम्हारे टोकन्स और लॉक होते जाएंगे। इनका मतलब क्या है, अब ये फीचर इंप्लीमेंट करने से क्या हुआ, इफ देयर आर लेट अस आई हैव ओनली 2 सॉल्ट टोकन्स, कुछ तो फालतू मैंने प्रोग्राम में डिप्लॉय किया है, लेट अस लॉक माय 2 सॉल्ट टोकन्स। तो सबसे पहली बात स्टोरेज नहीं स्टोर, कुछ सेंस ही नहीं कर रहा उसका, बराबर। तो दैट स्टोरेज कैन बी एक्सेस्ड बाय समवन एल्स, वन इंपॉर्टेंट डेटा। तो सोलाना वाला ने क्या दिमाग लगाया भाई, तुम स्पेस जब तक यूज करोगे ना, कुछ शक्तियां तुम्हारी हम छीनेंगे, जैसे तुमने हमको वो स्पेस वापस दिया, तुम्हारी शक्तियां हमको वापस देंगे। और इथेरियम के केस में क्या है, नोड इम्प्लॉयज हर एक नोड करेगा कॉपी। देखो क्या है, सोलाना क्या होगा, हमारे वैलिडेटर ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हार्डवेयर में बहुत खर्चा हो गया उनका। अब कचरा स्टोरेज करोगे, क्योंकि जो डेटा है अकाउंट का वो कहाँ पे स्टोर है, वैलिडेटर की डेटाबेस में। हाँ, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मिनिमम रैम का रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग सोलाना वैलिडेटर इज मिनिमम रैम, मिनिमम 16 GB का मैकबुक आ जा रहा है 2.5 लाख, x इक्वल टू 256 जो भी है, जब मल्टीप्लाई करोगे खुद तक सिर्फ रैम मिलेगा, ये तो पूरा मैक आया, एसएसडी भी आया ना, सिर्फ रैम की बात चल रही है। So पूरा सॉकेट देना पड़ेगा। सो सोलाना के केस में क्या है, इफ इट इज इम्पोर्टेंट स्टोर ऑन द ब्लॉकचेन and for as long as you store that your salt tokens will be kept locked। अब एग्जैक्टली लॉक होगा कैसे स्टोर होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम लोग रेंट को इन डिटेल में चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा, एज अ यूजर सिंस आई एम पेइंग टू स्टोर डेटा, सो आई विल मेक श्योर आई विल स्टोर ओनली द इंपॉर्टेंट डेटा। तो कुछ भी कचरा स्टोर नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम पेइंग टू स्टोर दैट, राइट। वो मुझे कब मिलेगा, व्हेन आई विल डिलीट दैट डेटा। So I will ensure that I store only what is important and not any jargon or कुछ से any state data। तो सोलाना में क्या बोला, अगर डेटा स्टोर करना है लॉक करो, डेटा डिलीट करो अनलॉक। इससे जो डेटा साइज इथेरियम के केस में एक्सपोनेंशियली ग्रो होता ही रहेगा। इथेरियम के केस में डेटा कभी कम नहीं होगा, बट सॉल्व के केस में कम नहीं होगा।
इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, एक ओनर अकाउंट है वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ओनली द ओनर प्रोग्राम कैन may modify an account data, जो डेटा फील्ड है जो एनएस प्रोग्राम है वही मॉडिफाई कर सकता है। सेकेंड, अगर मैं ओनर हूँ इस अकाउंट का, सो currently I can send that or I can send all tokens, and third, ownership may be reassigned। ये reassign कब होगा, जब डेटा डिलीट हो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में डेटा मैंने चेंज किया और उस डेटा में ऐसे था कि ये इसका पैरामीटर बैलेंस 10,000, अगर मैंने डायरेक्टली उसका ओनर चेंज कर, तो मैं क्या करूँ, ये इसका बैलेंस हटा देता हूँ और कोड भाई को भेज देता हूँ। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके वजह से जो तुमने डेटा पहले लिखा है उसको डिलीट करो, उसके बाद ओनरशिप चेंज करो। उसके बाद तुम ओनरशिप चेंज करोगे तो इट इज एज गुड एज देयर आर नो सिक्योरिटी। जो डेटा इंपॉर्टेंट था जिसके ऊपर हैक हो सकता था वो डेटा ही नहीं है, डेटा को डिलीट करो फिर ओनरशिप चेंज करो। हाउ एन अकाउंट एक्चुअली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। लास्ट वीक हमारा जो लैब हुआ था राइट, थर्सडे को, तो उसके सबसे पहले हम लोगों ने किया था सोलाना ट्रांसफर, रिसीवर्स एड्रेस, अमाउंट, हाइफन अलाउ अनफंडेड रिसिपिएंट। अगर तुम हाइफन अलाउ अनफंडेड रिसिपिएंट कमांड लाइन ऑप्शन को हटा दोगे तो उस केस में तुम्हारा ट्रांसफर फेल होगा। Either transfer which you are trying to do, like to an account that does not hold any solution that will fail. So for an account to come into existence, it must have some funds. The first step is the payer transfers enough land codes to cover the rent exempt minimum for the requested size. In order for an account, previously हमने क्या concept देखा, anything that you want to store on Solana, right? You must pair it. इसीलिए जब हम लोगों ने वो लैब किया हाइफन अलाउ अनफंडेड रिसिपिएंट्स, दैट अकाउंट did not add into the rent exempt value set in the Solana DevNet, इसीलिए हमने वो फ्लैग पास किया हाइफन अलाउ अनफंडेड रिसिपिएंट। तो फंड क्या करता है, supplier transfers enough land codes to cover the rent exempt minimum for the requested size। So making up network like the border fishing. All time आप लोगों के लिए दे हमारा इंडस्ट्री टू प्लस फैमिली का कम से तो वो से ले लिया था, वो इस चीज के लिए लिया था। अगर तुम्हारा अकाउंट सोलाना पे एग्जिस्ट को करना है, your account should exist on Solana, so that account must have some amount of lab codes। थर्ड कंसेप्ट और वो जो लैब कोड्स है, वो लैब कोड्स कितने होने चाहिए टू कवर द रेंट एग्जेम्प्ट मिनिमम फॉर द रिक्वेस्टेड साइज। अभी जो रेंट एग्जेम्प्ट मिनिमम है, हम लोग दिन भर में 2 लाख चैट जीपीटी रिक्वेस्ट करते हैं, इसके लिए एक रिक्वेस्ट ये भी करो, व्हाट इज द रेंट मिनिमम एग्जेम्प्ट, व्हाट इज द रेंट एग्जेम्प्ट मिनिमम फॉर सोलाना अकाउंट। मतलब जो फ्लैग लगता है सेकंड बिटकॉइन की प्राइस एंड जो जो हम लोग फ्लैग लगा है वो फ्लैश दैट फ्लैग इंश्योर्ड even though this account has 0 funds, still transfer or let the transfer happen successfully। मैंने फ्लैग निकाला भी कुछ नहीं होता। नहीं होगा व्हाट होता है ये इज व्हाट तुम्हारा उस दिन तुमने जब स्टार्टिंग में 2 बार ट्राई किया तब नहीं हुआ, जब थर्ड टाइम ट्राई किया तब हुआ। ये तो भी है वो तो इसके बारे में बोल रही है कि ये पासवर्ड की नहीं मालूम उसमें। आज जाओ जो आईफोन अलाउ अनफंडेड रिसिपिएंट वाला फ्लैग है, एक नया अकाउंट क्रिएट करो, एग्जिस्टिंग अकाउंट के बाद से क्रिएट अ न्यू अकाउंट। इट फॉर उस नए अकाउंट को एक 1 सॉल्व भेजिए, जो रिसिपिएंट है that must have 0 सॉल्व, ठीक है। exempt the flag आईफोन अलाउ अनफंडेड रिसिपिएंट चल गया तो कंटीन्यूअस असेसमेंट में आउट ऑफ दे दोगे, नहीं चले। सेकंड इज एलोकेट। फर्स्ट अगर तुमने उस अकाउंट को फंड किया, ठीक है, second allocate। The system program reserves a fixed number of data bytes, this size is set once and cannot go execute। काउंट है, इसका साइज है 32 बाइट्स, ये सिस्टम अकाउंट सेट करता है वो फिक्स, ये तुम्हारा वॉलेट अकाउंट है। इससे बड़ा अगर तुमने 64 बाइट्स कर दिया तो फिर सोलाना की लकी। थर्ड इज असाइन ओनरशिप मूव्स फ्रॉम द सिस्टम प्रोग्राम टू द टारगेट प्रोग्राम व्हिच कैन नाउ राइट द डेटा। अकाउंट्स की उत्पत्ति कैसे होती है इंडियन प्रोग्राम, पहले कुछ पैसे भेज, सेकेंड इसके लिए फिक्स डेटा लोकेट कर, थर्ड इसका ओनरशिप चेंज कर, फोर्थ है द कोडिंग प्रोग्राम राइट्स इट्स ओन आइडेंटिटी इन द फ्रेश बाइट्स कंबाइंड द टोकन अकाउंट द प्रीवियस अकाउंट। अभी ये सब कौन सा जाता रहेगा, इज क्या है, ये क्या है, टोकन अकाउंट क्या है, टोकन प्रोग्राम क्या है। अभी जरूरी ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज देयर आर 4 ways in which the account comes into existence: purchase price,
एंड केस असाइन आज वाला क्या है इनिशियलाइज। इन चारों में से कोई भी स्टेप होगा तो तुम्हारा अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। मतलब जैसे बिग बैंग हुआ उसके बाद यूनिवर्स आ गई, दैट्स ऑल। इतना याद रखो क्योंकि क्या टेक्निकल डिटेल्स हम लोग नहीं लेना हमसे, हमारा सब थियरी ही चल रहा है। हाँ विदाउट टेक्निकल सिर्फ थियरी, इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग, अगर तुमको समझ में आ गया ना फिर नेक्स्ट वीक से तुम लोग पढ़ाओ, मैं खुद लेक्चर में बैठता जो फिक्स साइज की बात कर रहे थे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम अकाउंट डेटा लें एम मेगाबाइट्स। अगर ये कैप नहीं लगाए तो मैं पूरा मूवी स्टोर कर देंगे ब्लॉकचेन पे 3 GB 4 GB इट इज ओपन टू ऑल। अकाउंट डेटा इज अ फिक्स्ड साइज ऑफ अकाउंट डेटा का मैक्सिमम साइज कितना है 10 MB, राइट। व्हाट द रन टाइम यूजिंग a continuous byte array of exactly the allocated length. Continuous मतलब continuous one after the other. ये मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन जो 20 बाइट्स चाहिए तो रन टाइम जो है सोलाना का जो वर्चुअल मशीन है क्या देगा वो 20 बाइट्स से जीरो स्पिन लाइन क्रिएशन। इनिशियली उसमें कुछ वैल्यू नहीं है तो सिर्फ जीरो वैल्यू रहेगा, जब कुछ लिखोगे तब उसकी वैल्यू राइट। नो टाइप्स नो स्कीमा सीरियलाइजेशन इन द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इसी प्रकार से आप तक तक गए। मेरे हिसाब से ये लास्ट टाइम, इसके बाद शायद लास्ट है ये तो मैक्सिमम 1 या 2 स्लाइड है फर्स्ट। ये समझ सकता हूँ बहुत सारा थियरी हो रहा है बट करना पड़ेगा। स्किप नहीं कर सकते ठीक है नहीं सर 13 रुपीज़ में से चॉकलेट्स प्रिपरेशन के लिए उसको उतना टाइम देना पड़ेगा ना, तब कस्टमर को पसंद आएगा। अब देखो साइज इज chosen at creation and does not grow by itself. Growing later makes an explicit reallocation plus extra lamp ports. अगर तुमने एक फॉन्ट बनाया है तुमने उसको मैक्सिमम साइज दिया 5 MB, अगर वो प्रोग्राम अकाउंट है तो 5 MB इज मोर दैट इथेरियम का तो साइज इज कैप्ड एट 24 KB स्मार्ट फॉन्ट है प्लीज दैट इज डिप्लॉयमेंट बाय राइट। अगर 24 KB का स्मार्ट फॉन्ट लिखना चल सकता है, 5 MB 10 MB तो बहुत होता है। सिंगल इंस्ट्रक्शन में ग्रो एन अकाउंट बाय एट मोस्ट 10 किलोबाइट्स। इस तरह तो इसी तरह आज का हमारा सोलाना का फर्स्ट लेक्चर खत्म हो गया है। गूगल क्लासरूम पे इसको मैं डाल दूंगा एन लेवल से क्या एक्सपेक्टेड है एंड व्हाट क्वेश्चंस फ्रॉम यू, गो थ्रू द टॉपिक्स, राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, सेंड दोस क्वेश्चंस either गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप चैनल सीधे बता जो बात भी डाल दो, क्योंकि जब तुम हमसे रीड करोगे तुमको और क्वेश्चन आएंगे तब और अच्छे से सिवाय कुछ भी क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, नो क्वेश्चन इज अ डम क्वेश्चन। अगर तुमको लगे यार नहीं यार ये क्वेश्चन पूछूंगा तो पागल लिखूँ नहीं भाई, कुछ जब तक पूछेगा तब तक समझेगा कैसे, ठीक है। Yes. सो नेक्स्ट लेक्चर में जो मिनिमम रेंट एग्जेम्प्ट मिनिमम वैल्यू क्या है और सेट कैलकुलेशन और वैल्यू क्या है वैसे नेक्स्ट इसमें कवर होगा। अब जो मैं स्टोरेज के बारे में इतना बोल रहा था कि स्टोरेज के लिए यू हैव टू पे rent and the economics of storage, how exactly working for storage, how that refund ends, exactly locking हो रहा है क्या या फंड्स मेरे अकाउंट में है बट आई कैन नॉट यूज इट, कुछ फ्लैग सेट हो रहा है क्या, तो सारी चीज़ आपको कवर करनी। देन वी टेक economics of storage. The second part we have started with unit Solana Wo next little bites. यूनिट 2 हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यूनिट 1 हमारा खत्म हो चुका है, यूनिट 2 का हमने पहला पार्ट कवर कर दिया है, सेकेंड पार्ट वी कवर टुमारो एंड इन द सेकेंड हाफ वी डू स्किल